اس گناہ کے اندر آنے کی وجہ سے، گناہ کی دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی وجہ سے، گناہ کے اندر رہنے کی وجہ سے انسان کا اطمینان اس کی زندگی سے چلا جاتا ہے. یعنی گناہ ہمارے بدن پر ایسا اثر انداز ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے ہمارا سکون برباد ہو جاتا ہے. گناہ کی وجہ سے ہماری زندگی کی برکات رک جاتی ہے. ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے ہماری خوشیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے آسمانی برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے ہماری شفاعیں رک جاتی ہے. ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے ہماری سرفرازی رک جاتی ہے. ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارے وقت کا ضیاع ہوتا ہے. ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر رسوائی اٹھانا پڑتی ہے. ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر ذلت بھی، رسوائی بھی اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اس لیے میں کہوں گا ایک چیز ہے جس کا نام کتاب مقدس ہے، یہ اپنے گناہوں سے دور رہنے کے لیے درس دیتی ہے. اور اس کلام کو پڑھیے، یہ کلام آپ کو گناہوں سے نکال کر آسمان کی زندگی کے اندر لے کر جائے گا. اس لیے یہ کلام، زوردار تالیاں اس کلام کے سوا، زوردار تالیاں، کیونکہ یہ کلام ہے جو آپ کے میرے حالات بدلتا ہے. اگر کسی فیملی کے، اگر کسی شخص کے، اگر کسی خاندان کے حالات نہیں بدل رہے تو میں یہ کہوں گا اس کے سامنے ہر گھر کے اندر خدا کا کلام پڑا ہوا ہے. آپ کے اگر حالات نہیں بدل رہے، آپ کی زندگی کا گناہ ختم نہیں ہو رہا، اگر آپ کی سوچ نہیں بدل رہی، اگر آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، اگر آپ قرضے کے اندر ہیں، اگر آپ بیماریوں کے اندر ہیں، اگر آپ لعنتوں کے اندر ہیں، اگر آپ مشکلات کے اندر ہیں، تو یاد رکھیے یہ کتاب آپ کو دنیا کی ساری مشکلات سے نکالے گی. آمین. اس لیے میں یہ کہوں گا ایوری ڈے اس کلام کو پڑھیں، کیونکہ یہ کلام ایوری ڈے برکتیں رکھتا ہے. اس کلام کے اندر ایوری ڈے میرے رب کے لیے برکات پائی جاتی ہیں. لیکن آج بڑا خوبصورت مضمون ہم سیکھیں گے. آپ کا ایمان بند دروازے کھولتا ہے. مضمون کیا ہے؟ آپ کا ایمان بند دروازے کھولتا ہے. کھڑے نہیں، آپ کی پیچھے تک سب کی ایکول آواز آنی چاہیے، کوئی بھی خاموش نہ رہے، نہیں تو انہوں کلے لوگ کھڑے ہو کے کہنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ آپ کا ایمان بند دروازے کھولتا ہے. اچھا، میں کہوں گا مضمون کیا ہے؟ آپ کا ایمان بند دروازے کھولتا ہے. ہلے نہیں نا، دوبارہ مضمون کیا ہے؟ آپ کا ایمان بند دروازے کھولتا ہے. آپ کا ایمان بند دروازے کھولتا ہے. آج بڑی فیملیز کے دروازے برکتوں کے بند ہوئے ہوئے ہیں. آج بڑی زندگیوں کے دروازے آسمان پر بند ہوئے ہوئے ہیں. آج بڑی ایماندار زندگیاں گزارتے گزارتے وہ گناہ کی دلدل کے اندر آگے، وہ مشکلات کی دلدل کے اندر آگے، اور جس کے سبب سے ہماری برکتوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں. لیکن یاد رکھیے، آپ جب ایمان لے کر آئیں گے، آپ ایمان کے ساتھ دعا کریں گے، آپ ایمان کے ساتھ بائبل پڑھیں گے، آپ ایمان کے ساتھ چرچ جائیں گے، آپ ایمان کے ساتھ گھٹنے ٹیکیں گے، آپ ایمان کے ساتھ خدا کے حضور اپنی مشکلات کو رکھیں گے. میں یہ کہتا ہوں دنیا کی جتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جب آپ یسوع کے سامنے رکھیں گے، آپ کا میرا یسوع بڑی سے بڑی مشکل کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے دنیا کی جیسے بھی مشکل ہو، آپ نے اس مشکل کو لے کر اپنے خداوند یسوع کے پاس جانا ہے اور گھٹنے ٹیکنے ہیں، عاجزی کے ساتھ کہنا ہے خداوند یہ دروازہ صرف تیری ذات کھول سکتی ہے. آمین. یہ بند دروازے صرف اس کی ذات سے کھل سکتے ہیں، اور وہ ذات نہ تو زمینیوں میں ہے نہ آسمانیوں میں ہے. صرف ایک نام ہے جو یسوع نام ہے. وہی نجات کا منبع ہے، وہی ایمان کا بانی ہے، وہی ہمیں نجات دینے والا ہے، وہی ہمارے گناہوں کی خاطر زمین پر آیا. اس لیے جو آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا، اس لیے آیا تاکہ ہم گناہوں سے رہائی پا جائیں. میں یہ کہتا ہوں اصل مقصد اس کا آسمان سے آنا یہ تھا ہم گناہوں سے آزاد ہو جائیں. آمین. اور نہ صرف اس نے گناہوں سے آزاد کیا بلکہ دنیا کی برکتیں بھی ہمیں دی ہیں. اس لیے 2 پوائنٹ ہمارا نکالیے گا. پہلا،
करंथियों का खत है 16वां बाब 9वीं आयत। एक ही आयत पर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। बड़ी दफा बड़े बड़े हवाले बयान किए जाते हैं, पर ये भी हवाला निकाले। मैं समझता हूँ कि अगर बाइबल के आप एक ही लफ्ज को लेकर बोलना शुरू कर दे, यकीन माने लफ्ज खत्म नहीं होगा, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप उस लफ्ज पर भी बोलना शुरू करें। बाइबल के एक लफ्ज अगर ईमान की बात ले जाए, आप सारी जिंदगी ईमान के ऊपर सुनाते रहे, सारी जिंदगी ईमान का कलाम सुनाते रहे, आप और मैं खत्म हो जाएंगे, लेकिन लफ्ज ईमान खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा वसील टॉपिक है, इसलिए आप गौर से सुनिएगा। 2 पॉइंट है शैतान आपके लिए दरवाजे बंद करता है। पहला पॉइंट क्या है? शैतान आपके लिए दरवाजे बंद करता है। आवाज का हट्टे इतना नहीं होना। पहला पॉइंट क्या है? शैतान आपके लिए दरवाजे बंद करता है। अगर हम शख्सी तौर पर कहें तो हम ये कह सकते हैं शैतान मेरे लिए बरकत के दरवाजे बंद करता है। और दूसरा पॉइंट, आपका ईमान आपके लिए बरकत के दरवाजे खोलता है। हमें 2 पॉइंट है और इन 2 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। जरा पढ़िएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए एक वसीह और कारआमद दरवाजा खुला है और मुखालिफ बहुत से हैं। आमीन। क्योंकि मेरे लिए क्या दरवाजा खुला है? ऊंची बोले, कौन सा दरवाजा है? वसीह दरवाजा। भाई आपके मेरे लिए जो दरवाजा है वो बड़ा वसीह है। दुनिया में ऐसा दरवाजा है ही नहीं जो आपको आसमान की बात से मिल जाए। दुनिया में ऐसा दरवाजा है ही नहीं जो आपके लिए निजात के बरकत के दरवाजे को खोले। सिर्फ एक है जिसका लफ्ज ये है कि दरवाजा मैं हूं। दरवाजा कौन है? मुझे बोलो, दरवाजा कौन है? अगर यीशु दरवाजा है तो याद रखिए सिर्फ दुनिया में एक दरवाजा है जिसके वसीला से आसमान की बादशाह में जा सकते हैं। इसलिए मुकद्दस पौलुस जो है वो जब करंथस की कलीसिया को लेटर लिखते हैं और करंथस की कलीसिया को लेटर लिखते हुए वो लफ्ज बयान करते हैं 19वीं और 9वीं आयत में। वो कहते हैं क्योंकि मेरे लिए एक वसीह क्या है? वसीह। वसीह का मतलब क्या है? कुशादा, खुला। खुला। और भाई आपके मेरे लिए ये नॉर्मल दरवाजा नहीं है, ये खिड़की नहीं है, या छोटा सा डोर नहीं बयान किया गया, ये एक बड़ा वसीह दरवाजा। और आगे जरा बयान करें, आगे क्या लिखा है? और कारआमद है ना। कारआमद का मतलब क्या है? हर तरह से काम में आने वाला। आपके मेरे लिए सिर्फ एक कारआमद चीज है, याद रखिए, वो यीशु मसीह का दरवाजा है। आमीन। दुनिया में हमारे लिए बड़ी चीजें हैं, लेकिन शायद वो आपके मेरे लिए कारआमद ना साबित हो। और कई दफा हम कहते हैं भाई चीजें तो ली थी लेकिन कारआमद साबित नहीं हुई, चीज तो ली थी लेकिन कारआमद साबित नहीं हुई। ये सारी चीजें तो हैं लेकिन कारआमद साबित नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ मुकद्दस पौलुस के लफ्ज हैं कि हमारे लिए एक वसीह और कारआमद दरवाजा क्या है? खुला है, बंद नहीं है। याद रखिए दुनिया के दरवाजे बंद हो सकते हैं लेकिन मेरे और आपके यीशु का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आमीन। हॉस्पिटलों के दरवाजे बंद हो सकते हैं, दुनिया की चीजों के दरवाजे बंद हो सकते हैं, आपके अपने बैंक बैलेंस शायद आपका रुपया पैसा जो बैंकों के अंदर है, लॉकर के अंदर है, मे भी वो आपकी चेकबुक घूमने की वजह से या चेकबुक खत्म होने की वजह से या एटीएम खत्म होने की वजह से या एटीएम घूमने की वजह से वो आपका अपना पैसा जो है वो शायद लॉकर के अंदर बंद हो सकता है। आपकी चीजें के लिए याद रखिए शायद जमीन पर दरवाजा तो बंद हो सकता है, लेकिन आसमान का दरवाजा 24 हमारे लिए खुला रहता है। वो 24 घंटे जागता है। हमारा खुदा कभी सोता नहीं। आमीन। वो कभी ऊँघता। इसका मतलब ये है खुदा की नजर 24 घंटे हमारी जिंदगी पर है। शायद में भी हम सोए हुए हैं, हम लेटे हुए हैं और पुरसुकून है। शायद हम ये कहते हैं कि आज हमने बड़ी बड़ा अच्छा दिन गुजारा, आज हम बड़ी पुरसुकून नहीं सो सकेंगे। लेकिन याद रखिए आप और मैं जब सो रहे होते हैं आपका मेरा यीशु हमारी निगहबानी कर रहा होता है, आपका मेरा यीशु जाग रहा होता है।
जरूरत होती है, जागे हुए को उठाने की नहीं बल्कि कहने की जरूरत होती है। आमीन। इसलिए शैतान आपके लिए बरकत के दरवाजे क्या करता है? बंद करता है। कुछ ही बोलना, ठीक है ना? शैतान आपके लिए बरकत के दरवाजे क्या करता है? अगर मैं और आप अपनी जिंदगी की कमियों पर जाएं, अगर मैं और आप अपनी जिंदगी पर सोचें कौन कौन सी चीजें हमारे लिए बरकत के दरवाजे बंद कर देती है ना? अगर हम इसको मिलकर सीखें कौन कौन सी चीजें हैं जिनको शैतान इस्तेमाल करके आपके लिए दरवाजे बंद करता है। सबसे बड़ा झूठ जी, याद रखें। पहला पॉइंट है शैतान आपकी मेरी बरकतें स्टॉप या बरकत के दरवाजे बंद कर सकता है। नंबर 1 पर क्या आ गया जी? झूठ आ गया। ये कलीसिया की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं अभी हुआ, ठीक है ना? ये अभी आपकी तरफ से, कलीसिया की तरफ से है कि नंबर 1 पर आप लोग लेकर आए हैं कि झूठ है। चर्च ना आना, ये भी क्या है? चर्च ना आना, लालच भी, और दुआ ना करना जी, कलाम से दूर रहना। कलाम से दूर रहना। याद रखिए जो कोई जिंदगी इस कलाम से दूर रहती है उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, है ना? शैतान दरवाजे क्या करता है? बंद कर देता है। भाई सबसे पहली बात वो आपको दुआ करने से रोकेगा, क्योंकि आपकी दुआ आसमान के बरकत के दरवाजे खोलती है। याद रखिए एलिया ने बड़े ईमान के साथ खुदा के हुजूर में आसमान की तरफ आंखें को उठाकर ये दुआ की कि आसमान बंद हो जाए और मींह ना बरसे। ये एक जमीन पर बरसने की वजह से है। उसने कहा और आसमान ने मींह नहीं बरसाया। ये 1 मंथ की बात नहीं, ये 2 मंथ की बात नहीं, ये 3 मंथ की बात नहीं, ये 1 साल की बात नहीं, बल्कि कितनी मुद्दत तक, कितने सालों तक दरवाजा आसमान का बंद हो गया? 3.5 साल। कितने साल? 3.5 बरस। उसके दुआ करने से। कैसे हुआ? दुआ करने। इसका मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी दुआ है, क्योंकि झूठ बाद में है, दुआ पहले है ना? सारी चीजें बाद में है। आप जब दुआ करेंगे आपकी दुआ आपको झूठ से राहत दे देगी। आप जब दुआ करेंगे आपकी दुआ आपके लिए बरकत के दरवाजे खोलेगी। आप जब दुआ करेंगे आपका दुआ करना ही आपके लिए बरकत के दरवाजे खोलेगा। और लेकिन फिर एलिया ने आसमान की तरफ निगाह की और आसमान को हुक्म दिया, और जैसे ही उसने हुक्म दिया उस वक्त कोई बादल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी दुआ ने आसमान के बरकत के दरवाजे खोल दिए। मैंने पहले भी बताया, याद रखिए जब आप और मैं जमीन पर हैं, अब अगर आप हंडिया बनाते हैं आप देखते हैं कि हंडिया में से भाप निकल रही है और वो निकल कर आपको उठती हुई नजर आएगी। याद रखिए जब वो उठती है तो उठकर वो जमीन पर नहीं रहती, बल्कि वो बखरात की सूरत में बनकर वो आसमान पर जाती है। आप दरियाओं का पानी देखते हैं, आप खड़ी झीलों में पानी देखते हैं, आप जितना जमीन पर पानी देखते हैं आप दोपहर के वक्त में देखते हैं वो बखरात बनकर आसमान पर जाता है, और जैसे बखरात बनकर वो आसमान पर जाता है और बाद में वही बखरात जो जमीन पर से बनकर आसमान पर गया, खुदा के हुक्म के मुताबिक वो जमीन पर बारिश बनकर लौटता है। और वही पानी जब जमीन पर बारिश बनकर लौटता है तो वो पानी जमीन को जरखेज करता है, वो पानी फसल की पैदावार को बेहतरीन करता है। याद रखिए सेम अगर आप और मैं आंसू बहाकर खुदा के हुजूर में घुटने टेकर आंसुओं के साथ आप दुआ करेंगे, आपके आंसू बखरात बनकर वो आसमान की तरफ जाएंगे, और आपके आंसू जब बखरात बनकर आसमान पर जाएंगे वो बादलों में नहीं जाएंगे, वो चीजों में या हवा में नहीं घूमेंगे, बल्कि आपके मेरे आंसू खुदा के बेटे यीशु के पास जाएंगे और वहां से हमारे लिए बरकत के दरवाजे बनकर जमीन पर लौटेंगे। आमीन।
ये है, हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के हुजूर दुआ में आंसुओं के साथ शायद नहीं करते। इसलिए पहली बात, शैतान आपके लिए बरकत के दरवाजे क्या करता है? बंद करता है। बंद करता है। शैतान आपके लिए बरकत के दरवाजे बंद करता है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं तो आपका ईमान आपके लिए बरकत के दरवाजे खोलता है ना। अगर आप और मैं अभी भी आप कलाम सुन रहे हैं और यहाँ पर एक बहन बैठी है और उसका माइंड अभी अपने शौहर की तरफ है और वो उसके लिए एक मुश्किल है और हालात ख़राब हैं, और खुदावंद ने यहाँ बताया, याद रखिए आपकी दुआ आपके हालात बदल सकती है। हमें आप जब दुआ करेंगे, आप जब खुदावंद के हुजूर में घुटने टेकेंगे, मैं ये कहूँगा एक कॉपी पेंसिल है और उस कॉपी पेंसिल के ऊपर अपनी एक एक मुश्किल को 1 बाय 1 लिखते जाए। आप लिखें, खुदावंद ये नंबर 1 पर मुश्किल है, मैंने जंग की है, मैंने मुश्किल को हल करना चाहा लेकिन ये मुझसे मुश्किल हल नहीं हुई, मैंने सारे तरीके लगा लिए, मैंने सारे पापड़ ले लिए, है ना। जो कुछ मैंने करना था वो मैंने क्या कर लिया, पूरा किया, लेकिन मैं क्या हो गया, फेल हो गया, नाकाम हो गया। लेकिन यीशु, ये पहली मुश्किल तेरे सामने है, दूसरी मुश्किल तेरे सामने है, तीसरी मुश्किल तेरे सामने है, चौथी मुश्किल तेरे सामने है। आप लिखते जाएं जब तक आपकी मुश्किलात खत्म नहीं होती। आप लिखते जाएं जब तक आपके माइंड के अंदर सारी मुश्किलात हैं। आप बहुत सारे लोग मुश्किलात का रोना रोते रहते हैं लेकिन उसके सामने नहीं रोते जो मुश्किलात को ख़त्म करता है ना। भाई मुझे बताएं, मुश्किलात का रोना रोना चाहिए या मुश्किलात दूर करने वाले को रो कर दिखाना चाहिए? याद रखिए, आप दुनिया को रोकर बताएंगे, दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी, लेकिन आप यीशु को रोकर बताएंगे, यीशु आपके आंसुओं को देखकर आपके लिए बरकत के दरवाजे खोलेगा। हमें फैसला हमने करना है, गलेडू सोट सोट के लोगों ने मुखाने या के यीशु को। फैसला हमने करना है, अपनी मुश्किलात लोगों को बतानी है। लोग आपकी मुश्किलात पर में भी हल करने की बजाय आपकी मुश्किलात पर हंसेंगे, लेकिन मेरा और आपका यीशु आपकी मुश्किलात पर हंसेगा, क्योंकि मुश्किलात मेरे यीशु के सामने जीरो है। आमीन। इसलिए आप याद रखिए, आपका ईमान आपके लिए बंद दरवाजे क्या करेगा? वो दरवाजे जो इब्लीस ने आपके लिए, आपकी बरकत के लिए बंद कर दिए हैं, आपका ईमान उन दरवाजों को खोल सकता है। आप ईमान रखते हैं? कितने रखते हैं? आप ईमान रखते हैं कि भाई मेरी मुश्किलात का हल यीशु के पास है? अच्छी बोलो, डरना नहीं। आप ईमान रखते हैं? आप ईमान रखते हैं कि यीशु के पास मेरी बीमारियों का हल है? आप ईमान रखते हैं कि मेरी सरफराजी की बरकत के दरवाजे मेरे यीशु के पास है? अगर आप ईमान रखते हैं तो क्यों दुआ नहीं करते? दुआ कर दे मौत पैंदी है ना। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी पर गौर करें तो आज बड़े बेशुमार लोग हैं जो अपने घरों में रेगुलर दुआ नहीं करते, जो रेगुलर बाइबल नहीं पढ़ते, है ना। मैं हैरान हूं, मैं कभी कभी बरकता अपने तो भी बढ़िया है ना, बरकता की डिमांड एडी एडी वड्डी, इंज कहने कभी खुदा का जहाज भी मेरे को ही आ जाए, है ना। आप याद रखिए, आप अपनी दुआ और ईमान से अपने लिए बरकत के दरवाजे खोल सकते हैं, और ये आपके लिए कोई दूसरा पर्सन नहीं है, आपकी अपनी दुआ, आपका अपना ईमान आपके लिए आसमान के दरवाजे खोल सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आए अपनी आंखें बंद करें और घुटने टेकें, जो घुटनों के बाद हो सकते